Yes. In last classes, I had explained types of needs, types of motivation, and nature of motivation. Now, I'm discussing Maslow hierarchy of needs theory. Maslow की theory I had explained. Important है ये, उसलिए आती है एग्जाम्स में भी. In this theory, Maslow says needs and satisfaction step by step. Step by step in the sense hierarchy system. In hierarchy system, human needs tend to be diverse in content as well as in length. डॉक्टर अब्राहम मैस्लो, इनका नाम पूरा क्या है मैस्लो का? डॉक्टर अब्राहम मैस्लो. डॉक्टर अब्राहम मैस्लो हैज फॉर्मुलेटेड a widely accepted theory of human motivation based on hierarchy of human need, which is universally accepted. He has stated 5 basic needs level. 5 basic needs which rank in order of importance. इसमें इम्पॉर्टेंट है कि जो ऑर्डर से जो नीड्स लगी होती हैं, रैंक इन ऑर्डर में. ठीक है, रैंक इन ऑर्डर ऑफ इम्पॉर्टेंस फ्रॉम लोअर लेवल नीड्स. लोअर लेवल नीड्स में साइकोलॉजिकल नीड्स आती हैं. दिस थ्योरी suggests that all individuals try to satisfy the lower level needs before higher level needs emerge. The lower level of unsatisfied needs that an individual experiences serves to motive his behavior. When this need is satisfied, then a higher level need emerges and again tension appears. To reduce this tension, the individual gets motivated and fulfills it. When this need is satisfied, a new higher need emerges. ये ही एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वन नीड फुलफिल एंड देन न्यू नीड प्रिपेयर एंड रेडी. According to this theory, however, there is some overlap between each level, as no needs is ever completely satisfied. For this reason, though all levels of need below dominant level continue to motivate behavior to some extent. The prime motivator, the major driving force within the individual is lowest level of need that remains largely unsatisfied. Simply, in this Maslow hierarchy of needs theory, lower level needs in the sense psychological needs से start होके धीरे धीरे one need completed and then again second need prepare, इस पर डिस्कस किया और वो स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, तो 5 लेवल जो उन्होंने बताए हैं वो हैं साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स एंड सेल्फ स्टीम नीड्स.
देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, ये 5 स्टेप्स हायरार्की नीड में आपको, ये स्टेप बाय स्टेप इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये आपकी मैस्लो की थ्योरी गलत हो जाएगी। मैस्लो की थ्योरी में मेन है कि स्टेप बाय स्टेप विद स्टेप इसको स्टडी करना, रैंक इन ऑर्डर, यही इंपॉर्टेंट चीज है इनकी थ्योरी में, रैंक इन ऑर्डर। तो फर्स्ट जो है साइकोलॉजिकल नीड्स इन द सेंस लोअर लेवल नीड्स। लोअर लेवल नीड्स से स्टार्ट होके अपर लेवल नीड्स एंड वन नीड फुलफिल and satisfied, then after second need prepare and second fulfill, then third need prepare। तो एक्सपेक्टेशन इंसान की बढ़ती जाती हैं और उसकी नीड्स हमेशा प्रिपेयर रहती हैं। तो वही उन्होंने डिस्कस किया हुआ है मैस्लो ने। और बेसिक नीड्स जो है वो 5 नीड्स उन्होंने अपनी थ्योरी में डिस्कस की। इन साइकोलॉजिकल नीड्स, this is the first and most basic level of need, which are called psychological। Their needs are also called primary needs, which are required for sustain। For example, food, water, air, basic needs होती हैं। हम्म, इसमें फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, बेसिक नीड्स, इसमें इंक्लूड होते हैं बेसिक नीड, क्लोथिंग है। फूड, वाटर, एयर, शेल्टर, क्लोथिंग। According to Maslow, psychological needs are dominant when they are chronically unsatisfied। For example, a man who is very hungry, then no other things interest him than food. He dreams food, he remembers food, he perceive only food। क्योंकि जो हंग्री पर्सन को जब तक उसका सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिल जाता, जब तक उसको फूड नहीं प्रोवाइड हो जाता, तो वो उसको फूड ही फूड कैसे, हाउ टू गेट फूड, तो वो है ना। नेक्स्ट है सेफ्टी नीड्स। सेफ्टी नीड्स में नीड्स आर, जब साइकोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, देन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स स्टार्ट हो जाती हैं। जब इंसान का पेट भरा है, शेल्टर है और क्लोथिंग, एयर, वाटर सब कुछ है, तो फिर अब उसको क्या फियर रहता है, एक फियर रहता है, एक सेफ्टी का फियर रहता है। वो दे वांट सेफ्टी। हाँ, हम तब तक सेफ्टी नहीं चाहते जब तक कि हमारी ये बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं होती। तब तक हमारा क्या है ना कि एक इंटेंशन ये होता है कि अरे खाना, शेल्टर। अब उनको क्या सेफ्टी चाहिए, जो रोड पे जो एक टैम्पो लगा के बैठे हुए हैं, तो उनको क्या सेफ्टी की नीड्स है, सेफ्टी नीड्स उनके पास है? नो, उनके पास सेफ्टी की, क्योंकि बेसिक नीड नहीं है अभी। वो अपनी बेसिक नीड में फुलफिल करने में लगे हुए हैं। जब बेसिक नीड फुलफिल हो जाती है, देन सेकेंड नीड अराइज होती है, सेफ्टी। बेसिक नीड में मैंने फूड, शेल्टर, हाँ, क्लोथिंग, वाटर, एयर, ये सारी चीजें बेसिक नीड में। एंड देन सेफ्टी नीड्स स्टार्ट हो जाती है। ओके, सिक्योरिटी नीड बिकम द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड an individual's behavior। There are concerned physical safety। They are concerned physical safety, for example, order, stability, familiarity, routine, control over one's life and environment, and certainty, etc. This means a person will eat
lunch not only that day but also every day. Far into the future, safety means not only health wise but individual needs. Other securities like need for saving accounts, insurance. तो जब इंसान का पेट भरा हो और रहने के लिए अच्छी जगह, आप जब तक इंसान को सेफ्टी की जरूरत नहीं होती, वो कहते हैं ना कि कोई आएगा लेके जाएगा मेरे पास से, है क्या? तो अब वो जो जो ले स्टैंडर्ड हैं उनके पास, उनको सेफ्टी की नीड नहीं होती है। वाई? क्योंकि उनके पास एक बिछाने को होगा और थोड़े बहुत बर्तन होंगे खाने को, तो उनको सेफ्टी की नीड ही नहीं है। तो वो अभी सर्च फूड, सर्च शेल्टर, उसी में लगे रहते हैं। हाँ, एक्वायर एक्वायर ऑल फूड, शेल्टर, एयर, हाँ, क्लोथिंग। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो माइंड हमारा उस समय सेफ्टी के लिए कि अब कोई चोर ना आ जाए या कोई ऐसा ना आ जाए जो, तो हम अपना इन्वेस्टमेंट चालू करते हैं। मनी हमारे पास, तो मनी, जो मनी का एक कलेक्शन ऑफ द मनी है, ये एक हमारे इन्वायरमेंट, हमें एक फियर क्रिएट कराता है। ठीक है, कि एनवायरनमेंट से हमें, अदर पीपल से हमें फेयर होने लगता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वही है ना कि जब हम लंच डिनर सब लेते हैं तो उसके बाद, और लॉन्ग फ्यूचर में हम बिल्कुल उसके बारे में सोचना नहीं होता है, तो उसके बाद हमारे पास बचने का होता है। तो जो हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल होने के बाद तो हम उसको सेविंग करते हैं। सेविंग के बाद फिर हमारे अंदर एक फेयर डेवलप होता है कि इतना पैसा है, अगर हम घर में रखेंगे तो कोई चोर चुरा ले जा सकता है, तो हम इसको इंश्योरेंस करा दें, म्यूचुअल फंड्स खरीद लें या गोल्ड परचेज कर लें, और गोल्ड है तो इसको लॉकर में डाल दें। ठीक है, तो सेफ्टी नीड्स जनरेट हो जाती हैं। देन जब सेफ्टी नीड्स में फुलफिल हो जाती हैं तो अब वहां से स्टार्ट होती है थर्ड लेवल, सोशल नीड। इन सोशल नीड, थर्ड level of Maslow hierarchy includes such needs are love, affection, belonging and acceptance, advertisers of personal care products often emphasize all these social motives in their advertisement. हाँ, सोशल नीड्स में कि रिश्ते नाते बनाना, ठीक है, लव अफेक्शन, रिलेटिव से, फैमिली से, अदर पीपल से, सोशल नीड्स हो गए। एंड सेल्फ, देन आफ्टर फुलफिल सोशल नीड्स, create esteem needs, self esteem needs. In self esteem needs, this is fourth level of Maslow hierarchy of needs. According to Maslow, this becomes operative when the social needs of a person are more or less satisfied. Egoistic needs can, इसको हम सेल्फ स्टीम नीड्स या फिर इगोइस्टिक नीड्स दोनों कह सकते हैं। ठीक है, egoistic needs can be inward and outward or both oriented, and individual with inward directed ego needs reflect need for self acceptance, for self esteem, for success, independence, etc. And outward directed ego needs include need for reputation, status, recognition from others. तो जब हमारे पास सारी चीजें हो गई, रिलेशन हो गए, सेफ्टी हो गई, मतलब कुल मिला के हमारे पास इतना मनी हो गया कि हम उसके लिए, सेफ्टी के लिए तैयार हो गया हमको, ठीक है, बेसिक नीड्स हमारी फुलफिल हो ही गई, तो उस समय फिर हमारी सेल्फ स्टीम नीड, जिसको कि इगोस्टिक ईगो ईगो नीड जो भी है, वो जनरेट होती हैं। उसमें जो हमारी इनर सोल एंड आउटर सोल क्या एक्सेप्ट करती है और क्या चाहती है, हमें क्या क्या सेल्फ एक्सेप्टेंस है सक्सेस के लिए, इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता, सक्सेस, सफलता की हमें अचीवमेंट्स लेनी है, हम इसके बारे में हम तब सोच पाते हैं सारी चीजें जब हमारे पास सोशल नीड्स फुलफिल होंगी, बेसिक नीड्स फुलफिल होंगी एंड सेफ्टी नीड्स होंगी, तो फिर हम अपने ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ में
सब रेपुटेशन है, स्टेटस है, हाँ, और कि हमें भी अब कोई जाने, लोग रिकग्निशन फ्रॉम अदर्स, लोगों में पहचान, तो कहते हैं ना कि जब पैसा वैसा बढ़ जाता है तो लोग क्या करते हैं कि लोगों के यहाँ गाड़ी वाड़ी ले ली और व्यवहार बनाना शुरू करते हैं, जाना आना शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा दिखाना, जिसको कहते हैं दिखावा कि लोग मुझे भी जाने, मैं कितना, मैं मेरे पास मैं क्या कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, मेरी रेपुटेशन क्या है, तो अपने बीवीएस को वो चेंज करते हैं, ठीक है। एंड अचीवमेंट्स, और अचीवमेंट्स को कि कभी मॉल कोई हमने जगह ले ली, वहां पे पार्टी कर दी, बच्चे कहीं कुछ निकल गए बन गए, तो हमने उसको पब्लिसाइज किया कि हमारी ये तो ये ईगो से रिलेटेड सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है। ईगो मैंने बताया था कि सेल्फ एक्सेप्टेंस होता है, फॉर सेल्फ एक्सेप्टेंस जो भी है सक्सेस इंडिपेंडेंस, एंड जो भी सक्सेस एंड इंडिपेंडेंस हमारे सेल्फ सोल, सेल्फ इनर सोल जो होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली जो रहती है, ठीक है। ईगोइस्टिक हमने बताया था कि ईगो नीड्स जो होती हैं वो इनवर्ड एंड आउटवर्ड बोथ ओरिएंटेड होती हैं, वो हमारी सोल के अकॉर्डिंगली होती है, एनवायरनमेंट से हम अडॉप्ट करते हैं चीजों को, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम अपना बिहेवियर बनाते हैं। तो सेल्फ स्टीम नीड्स हो जाती है, स्टेटस मेंटेन करना, रेपुटेशन, एक रिकग्निशन फ्रॉम अदर्स की गाड़ी भी हो, बहुत घर का मेंटेनेंस हो, बच्चों का मेंटेनेंस हो, बच्चे अब वो बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बाहर कुछ बच्चे बाहर चले गए, तो इस तरीके से फैमिली मेंबर्स बहुत एकदम वेल मेंटेन रेपुटेड, तो सारी चीजें ये सेल्फ स्टीम नीड्स में इन्वॉल्व हो जाती हैं। एंड फाइनल एंड लास्ट, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फर्स्ट तो हो गई साइकोलॉजिकल नीड्स की, जो भी बेसिक नीड्स हैं, जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं वो बेसिक नीड्स फुलफिल करते हैं। फिर उसके बाद सेफ्टी नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही, लाइक फूड, एयर, वाटर, क्लोथिंग, हाँ जब सब कुछ है तो फिर हमारे पास ये होता है कि फर्स्ट तो ये होता है कि हमारे पास ये होना चाहिए, फर्स्ट बेसिक नीड्स। हाँ, तो जब बेसिक नीड्स हो जाएंगी, जब बेसिक नीड्स हो जाती हैं, तो फिर ये होता है कि कलेक्शन द मनी, मनी मनी कलेक्ट हो जाता है, मनी कलेक्ट हो जाता है और हमें करके खाने की, करके क्लोथिंग एंड फूडिंग का कोई टेंशन नहीं होता है। देन हमें एक फियर होता है कि हमारे पास कैश घर में है, गोल्ड है, तो हमें इसको कैसे क्या करना है, तो एक सेफ्टी नीड्स जनरेट होती है। देन सोशल नीड्स, जब सब कुछ हो जाता है तो इंसान सोसाइटी में इन्वॉल्व होना चाहता है, एंड अपने जो भी सोशल मोटिव्स हैं, तो लोगों से मिलना जुलना, अपने रिलेटिव्स एंड लव अफेयर अफेक्शन में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। जब फ्री माइंड हो गया तो सारी चीजें, और जब तक इंसान फ्री माइंड नहीं होता है तब तक इन सब चीजों में मेंटली इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, ठीक है। तो फिर वो आती हैं थर्ड नीड, जो रिलेशंस को मेंटेन करती हैं। एंड फोर्थ में इगोइस्टिक एंड सेल्फ एस्टीम नीड्स। इगोइस्टिक नीड्स में इन्वायरमेंट से अटैचमेंट, एनवायरमेंट से अटैचमेंट इन द सेंस कि सेल्फ ईगो के अकॉर्डिंगली रेपुटेशन, स्टेटस मेंटेन करना, रेपुटेशन मेंटेन करना, एंड रिकग्निशन फ्रॉम अदर्स विद, एंड फॉर सक्सेस इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सेल्फ एक्सेप्टेंस फॉर सेल्फ esteem. And last is self actualization. Self actualization, this was not coined Maslow but was done by Gestalt theorist called Bart Boston, but he popularized it. Maslow explained the term in brief by saying that individual at the stage has need to actualize of realize all one's unique potential. यहाँ पे this stage has needs to actualize of realize all one's unique potential and what one can be. This need can over be fulfilled. Moreover, very few people reached this level. The more self-actualized people become,
the more they want to become. This is motivation with its own inner dynamic. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जब इंसान जो चाहता है वो सारी चीजें पूरी कर लेता है तो वो एक वो महसूस करता है, रियलाइज करता है कि मैंने जो लाइफ में चाहा वो मैंने अचीव किया, एंड वो रियलाइज करता है कि अब उसको क्या उसका छूटा, क्या उसको आगे क्या करना है। रियलाइज गलतियां, अच्छाइयां, बुराइयां, वो बहुत कम लोगों को ऐसा होता है कि बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं जो लाइफ में चाहते हैं तो वो अचीव कर लेते हैं। और जब पर्सन अचीव कर लेता है आफ्टर देन वो रियलाइज करता है कि मैंने लाइफ में जो चाहा वो सेटिस्फाई, खुद को सेटिस्फाई करता है। हाँ, और हालांकि ये बहुत कम होता है कि नीड्स कैन सिंपली नीड्स कैन नेवर फुलफिल। हाँ, नीड्स कभी भी फुलफिल नहीं होती पूरी तरीके से, लेकिन बहुत कम पर्सन ऐसे होते हैं जो लाइफ में जो चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप उनको मिलता चला जाता है। तो वो एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन का स्टेज जो होता है वो लास्ट स्टेज, फिफ्थ स्टेज होता है। ठीक है। एंड Maslow suggests some points. There are 5 levels of needs. All needs are arranged in a hierarchy. अब अगर आपने पहली नीड को थर्ड थर्ड जगह रख दिया, हायरार्की नहीं, हायरार्की मतलब होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। हाँ, satisfied need is no longer a need. Once need or a certain order of need is satisfied, it ceases to be motivating factor. इसमें जब एक नीड सेटिस्फाई होती है देन दूसरी नीड जनरेट होती है। आफ्टर सेटिस्फाइंग, आफ्टर फुलफिल वन नीड। अब सेल्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पहुंचने का मतलब 5 नीड्स, ये पीछे 4 नीड्स आपकी फुलफिल होंगी तब आप फिफ्थ नीड पे पहुंचोगे। जब एक ओल्ड एज होती है और वहां पर सिर्फ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है, वो ओल्ड एज भी होता है अप्रोक्सीमेटली हो ही जाता है, क्योंकि इतना सारा अरेंज करते 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 टाइम ले लेता है। ठीक है, कि हमने अर्न किया, बहुत जल्दी नहीं हो जाता कि ये सारी चीजें 20 साल में हो गई। एक बहुत टाइम देता है कि रेपुटेशन मेंटेन होना, एक सेफ्टी नीड से हट के फिर उसके बाद आपका सोशल नीड जनरेट करना, सोशल नीड में उसको फुलफिल करना, एंड सेल्फ स्टीम नीड्स, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आते आते 50 years हो जाते हैं। देन वो एक्चुअल रियलाइजेशन का स्टेज होता है कि क्या पाया क्या खोया, एंड देन कहाँ हम स्टैंड है। Next, psychological and security needs are finite, but needs of higher order are infinite and are likely to be dominant in the person at higher level in the organization. Hmm. Next, Maslow suggests that various levels are independent and overlapping, each higher level emerging before the lower level need has been completely satisfied. Even though a need is satisfied, it will influence behavior because of independent and overlapping characteristics of needs. तो ये जो 5 लेवल हैं, 5 स्टेप्स आपके हायरार्की नीड्स के, मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, ये आपको क्लियर आई थिंक हो गए होंगे। साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, सेल्फ एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, ये जो भी हैं ये हायरार्की ऑर्डर में होंगे। एंड आफ्टर फुलफिल बेसिक नीड्स, सेफ्टी नीड्स जनरेट होंगी, एंड आफ्टर फुलफिल सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स जनरेट होंगी। ओके,
एंड जब सोशल नीड्स फुलफिल हो जाएंगी देन स्टीम नीड्स होगी एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये जो ऑर्डर है यही मेंटेन रखना है, अगर ऑर्डर डिस्टर्ब होगा तो ये मैस्लो हायरार्की नीड्स में काउंट नहीं होगा। क्लियर? एनी डाउट्स मैस्लो हायरार्की नीड्स? एनी पर्सन? नमन, सचिन? Hmm? Okay. This hierarchy of need has proved to be useful to marketers in enabling them to devise suitable advertising appeals depending on the need level of a particular product. This theory has been useful in applying a more behavior oriented structure to market, and marketers have used it for market segmentation and brand positioning. Each product, each product or service always addresses a natural needs hierarchy. Some of products like food, stuffs, address the basic and psychological needs for sustenance. At times, the advertising appeals can address one or more level of needs. For instance, soft drink ads such as Fanta, Mirinda, etc. Stress or safety, two level of needs stimulate simultaneously. They have to satisfy the psychological needs of individual as well as sharing food times with friends. Social needs. सोशल नीड्स, सोशल नीड्स में आप अपना टाइम शेयर करते हैं, अच्छा टाइम अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने जो भी रिलेटिव्स, हाँ, इनमें स्पेंड करते हैं। यहाँ से आपको अच्छा समय दोस्तों के साथ बिताना, यहाँ से शुरू हो जाती है सोशल नीड्स। Thus, if marketer are able to positioning products to appeal to just any category of needs, then this can also be broadened and used to be build a brand image. Now, product positioning. In product positioning, marketers have been using the hierarchy of needs for positioning their products. That is deciding how they should be viewed or perceived by target audience. They try to position their products so as to differentiate the brand from competitors. Few examples of product positioning. Nestle Milkmaid. Nestle Milkmaid has been positioned as a base for dessert recipes. Psychological as well as social needs are taken care of. Now, evaluation of Maslow hierarchy needs. These are some points. There is a lack of evidence to support it. Evaluation of हर एक कोई भी थ्योरी होती है, लास्ट में इवैल्यूएशन होता है कि इस थ्योरी में क्या ड्रॉबैक से क्या होना चाहिए, कहाँ स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो इसमें इवैल्यूएशन मैस्लो थ्योरी में इवैल्यूएशन किया गया। तो
Maslow theory has got a lot of appeals. If one is desperately looking for food, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता तो वो सबसे पहले बेसिक नीड को फुलफिल करना चाहता है. It is unlikely that he will concern about socializing or improving self potential, and it is very useful in the Maslow has evolved all his suggestions. Some points, these are some points. There is a lack of evidence to support it. It is not necessary that psychological and safety needs will be the predominant factors in determining behavior. And some has been unhappy due to the absence of money from the list of needs, and self-actualization and esteem needs will be dependent on each individual's self-perception. It is said the hunger and self-esteem are considered to be similar need, but the former is urgent and involuntary in the nature, whereas latter is a conscious and voluntary type. And next day there is no way to measure precisely how satisfied one need must be. Therefore, the next higher need become active. जब ये नीड पूरी हो जाती है तब आगे की दूसरी नीड एक्टिव होती है. क्लियर हुआ आपको कुछ? हम्म? आपको मोटिवेशनल नीड्स कुछ क्लियर हुआ? हम्म? किसी और को जय हुआ? नमन, मनप्रीत, सचिन. नहीं बेटा, इसमें फैमिली सोसाइटी में फैमिली नहीं होती, फैमिली ग्रुप अलग आएगा. सोसाइटी में फ्रेंड है, नेबर हैं, रिलेटिव्स हैं आपके, ऑफिस कोलीग्स हैं. हम्म. हाँ, तो जब हम बहुत खुश होते हैं, हमारे पास सारे पैसे वैसे होते हैं और गाड़ी भी हो गई, घर भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो हम अपना दोस्तों के साथ खुशियां शेयर करना चाहते हैं. जब हमारे पास चीजें हैं तो हम उसको एक नीड होती है कि हमारे पास दोस्त हो, हमारे पास हमारी सुनने वाला कोई हो. ठीक है, तो फिर उस समय सोशल नीड की जरूरत होती है. उसमें नेबर्स भी हो सकते हैं एंड फ्रेंड्स, मेन फ्रेंड्स ही आते हैं क्योंकि फ्रेंड्स हमारे बहुत नज़दीक होते हैं और हम अपने फ्रेंड्स से सारी खुशियाँ, बाकी सारी चीज़ें जो हम अपने फ्रेंड्स से, एंड शो ऑफ के लिए हमारे लिए रिलेटिव्स होते हैं जिनके सामने हम अपना शो ऑफ करते हैं कि हमारे पास ये है. हाँ, तो वो सोशल ग्रुप में हम रिलेटिव्स को इसमें रख सकते हैं आपका मोटिवेशनल थ्योरी में, बिकॉज इसमें ये दिखाया है, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि पहले बेसिक नीड्स को फुलफिल करना, फूड शेल्टर क्लोथिंग को. हाँ, और जब फूड शेल्टर क्लोथिंग हमारे पास आ जाती है और फ्यूचर की हमें उसको चिंता नहीं रहती, इतना हमारे पास हो जाता है, इतनी फंडिंग रहती है कि हम उसको इन फ्यूचर हमें सोचना नहीं होता है कि
फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग के लिए हमें कहाँ से कैसे क्या करना होगा। उस समय आता है हमारे माइंड में सेफ्टी नीड, क्योंकि हमारे पास एक सफिशिएंट मनी जो है, मनी का एक स्टॉक हो जाता है, ठीक है। तो उस मनी स्टॉक को हम घर में नहीं रख सकते, तो उस समय हमारे पास माइंड में आता है सेफ्टी, कि हम इसको कहीं इन्वेस्टमेंट में लगा दें। तो या तो बैंक में डालेंगे या फिर हम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारे अंदर एक फेयर जनरेट हो जाता है कि चोर उठा किसी पता चल गया तो वो हमें हमारे यहाँ से चोरी ना कर ले जाए या कुछ और, ठीक है। तो वो एक सेफ्टी नीड्स रिक्वायर हो जाती है। एंड थर्ड जो होता है फिर सोशल सोशल नीड। जब सारी चीजें हो जाती हैं, हम एकदम टेंशन फ्री हो जाते हैं, हमारे पास पैसे वैसे सब हो जाते हैं, हाँ गोल्ड भी हो गया, पैसा भी हो गया, सफिशिएंट स्टॉक हो गया हमारे पास, अच्छा, तो हमें फिर एक एंजॉय, हम माइंड से एकदम फ्री होता है उस समय। तो हमें चाहिए होता है कि हम अपनी चीजों को शेयर करें, सोशल, हम एक ग्रुप बनाएं, उसमें अफेक्शन, उसमें आपका लव अफेक्शन एंड सोसाइटी, लव अफेक्शन एंड सोसाइटी इन द सेंस हो गया आपका फ्रेंड्स, आपके नेबर्स, एंड लव अफेक्शन जो आपका जो आजकल चल रहा है लव अफेक्शन, ठीक है। तो जब इंसान माइंड से एकदम टोटली फ्री होता है विदाउट टेंशन, तो वो फॉल इन लव एंड अदर रिलेशंस में फॉल इन, ठीक है, तो वो डाइवर्ट होता है। एंड मोर सेटिस्फैक्शन, जो इनर सेटिस्फैक्शन जो सोल को सेटिस्फाई करे, ऐसे ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है वो होता है फिर आफ्टर देन स्ट्रीम नीड्स, जो इगोइस्टिक नीड्स, इगोइस्टिक नीड्स आई बिफोर, कि ये नीड्स जो है वो एनवायरनमेंट से जनरेट होती हैं, बिहेवियर मेंटेन करती हैं। अकॉर्डिंगली हम अपनी नीड्स अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हम अपने आप को मोल्ड करते जाते हैं, एंड हमारे बिहेवियर चेंज होता जाता है। एंड देन लाइक इसमें जो स्टेटस है, और आपका अचीवमेंट स्टेटस, हाँ सेल्फ रिकॉग्निशन, दूसरों को दिखावा, जो चीजें होती हैं कि हमें दूसरों को दिखाना कि हाँ हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, रेपुटेशन हमारा एक स्टेटस है। तो गाड़ी है और गाड़ी है, अब स्टेटस में क्या रहता है, घर का मेंटेनेंस, बच्चों का मेंटेनेंस, कि हमारे बच्चे अमेरिका में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे चेन्नई में बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये सारा एक स्टेटस मेंटेन होता है। और इसको फिर शो ऑफ, ये एक सोसाइटी में शो ऑफ, जब सोसाइटी से इन्वॉल्व हो जाएंगे तभी सेल्फ सेल्फ स्टीम की जो नीड है वो हम डेवलप कर पाएंगे। तो हमारा जो है स्टेटस हमारा किसके बीच में होता है, सोसाइटी के बीच में तो होता है। स्टेटस का मतलब क्या, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, नो, सेल्फ सेटिस्फेक्शन इन बिटवीन सोसाइटी, सोसाइटी के बीच में, सोसाइटी में जो है स्टेटस मेंटेन होता है सोसाइटी, सोसाइटी बिटवीन सोसाइटी, जो सोसाइटी देखे और वो बोले कि स्टेटस वैसे हम लोगों को कि हम अच्छे से रहते हैं, ठीक है, सब कुछ है बहुत अच्छे से, लेकिन जो एक स्टेटस, मैचिंग कर्टेन, सोफा, डिफरेंट, हर एक 6 महीने में इंफ्रा वगैरह चेंज कराना, हाँ घर का पूरा, हाँ, और तो वो सब की हमारे स्टेटस मेंटेन हो रहा है। तो स्टेटस किसके लिए मेंटेन करते हैं, सोसाइटी के लिए, कि लोग हमें कहें कि हाँ भाई वो भी कुछ है, उसकी रेपुटेशन, उसका स्टेटस मेंटेन है और भाई बहुत पैसा कमा रहा है। हाँ, तो एंड देन जब सारी चीजें फुलफिल हो जाती हैं, एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की स्टेज होती है, जब इंसान जो चाहता है, हम पर्सन ऐसे होते हैं जो चाह अचीव कर ले जाते हैं। तो जब ऐसा होता है तो उस कंडीशन में जो है सेल्फ रियलाइजेशन होता है कि क्या क्या खोया और क्या होना चाहिए, वो रियलाइज करता है पर्सन, वो मैच्योरिटी की एज होती है। फिर सब कुछ पाने के बाद में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेज आता है। एनी डाउट्स? तो ये सिंपल समझ लो कि हमारे फंडिंग, हमारी जो बेसिक, हमारी जो एक बेसिक लाइफ से शुरू होके अपर लाइफ, बेस लोअर लेवल लाइफ से शुरू होके लोअर लेवल, ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि यहाँ से शुरू जो हमारे जो रोड के किनारे या फिर जो ले स्टैंडर्ड पीपल जो जिनका अपना कहीं कॉटेज बना के थोड़ा बहुत रह रहे हैं, ठीक है, इनके पास कुछ भी नहीं है, वहां से स्टार्ट होता है पर्सन और एक हायर लेवल तक जाता है जहाँ उसके पास कोई नीड्स रही नहीं जाती हैं, ऑल नीड्स फुलफिल। हालांकि लाइफ लाइफ में एक चीज है
कि ये मैस्लो जी ने भी बोला हुआ है कि नीड्स नेवर फुलफिल, नीड्स कभी फुलफिल नहीं होती, बट इतना पाने के बाद हम ये मानते हैं कि लोगों की नीड्स बहुत कम लोग जो जो यहाँ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंच जाते हैं, तो वो काफी कुछ हद तक सक्सेस हुए। तो जो धरती से उठ के आसमान तक पहुंचे, सिंपल। तो मास्लो जी ने यही डिस्कस किया हुआ है, लोअर लेवल से स्टार्ट के अपर लेवल तक जाना। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ये स्टेप्स आपको ध्यान रखना है बस। ओके, एनी डाउट्स एनीवन? नाउ डाउट्स? ओके, ठीक है, नाउ क्लास इज ओवर। क्लास 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 स्टॉप। हाँ, ये रुको रुको एक मिनट, ये बताओ कि कल तुम लोग क्लास है क्या कोई? दिया, मेरे टाइम पे सुबह 9 बजे तुम लोग क्लास ले सकते हो, तो फिर हम 12 बजे वाली क्लास 9 बजे ले लें सुबह।